of Government Dungar College, Bikaner, to present the report. Honorable Commissioner Sir, Additional Commissioner Sir, Vinod Sir, Nodal Officer, Gyan Ganga Program, Principals from government colleges, and participants. I very proudly present a comprehensive report of Government Dungar College. We have two very important things to be proud of, that we were the first college. The Gyan Ganga program started with Dungar College on 7th of September 2020. And today is the valedictory, that is, we are ending on 6th March. And we also proudly boast of having the maximum number of FDPs during this program, that is 10. We organized 10 FDPs. And this subject-specific short-term program, we also proudly say that we had 100% participations. And the kind of range to subject orientations and presentations, they range from experimental demonstrations, interactive, informative lectures, live and online visit of industries, research laboratories, and last but not the least, science movies were also shown to the participants, and it was a highly informative and engaging sessions to all the participants. We also proudly say that we had sessions in all the FDPs that range from, the number ranged from 16 to 24 in some of the FDPs. And we also had international representation of resource persons. That was 5 international resource persons were invited. And we had large number of resource persons that represented from universities all over India, national and state level also. Then we had resource persons also from college teachers, because that is the ground situation. We get the direct feedback from the college teachers who actually teach in the classrooms, because this was an initiative for teaching learning. So teaching learning being the emphasis, we had a very common, sir, I would like to share this with you, that we had an experience of 2 FDPs, because in English, we were given 2 FDPs, and it is our proud privilege. We thank you from the bottom of our hearts that you showed faith in us, and this was an opportunity for us. A common initiative or a common kind of a response that we got from the participants was that this Gyan Ganga initiative was a very much needed, much awaited imperative to adjust ourselves and adopt to new kind of vistas during this pandemic situation. And we as teachers, we need to work out on this kind of a wisdom and vision, which is really required today to employ, define, and redefine our pedagogies, and also to stir creativity and evolve ourselves gradually, because as teachers, we evolve every day. And sir, I just end my report with a very brief report on this today's FDP, which was our last FDP. Today we had 6 resource persons from outside Rajasthan during this FDP from 1st to 6th March. We had 3 university representations from Rajasthan in the universities, and we had 4 resource persons from college education, and from in-house and Bikaner, we had 3 resource persons. I end my report here by thanking the Commissionerate, by thanking Vinod Bhardwaj, Nodal Officer, Gyan Ganga Program, all the representatives from the Commissionerate that for giving us this opportunity and showing their faith in us, for showing their faith in Government Dungar College. And we have proven ourselves again by delivering the best of our capabilities. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Divya Joshi ma'am, for your brief report. And now I request Convener, Government College Bandipur to present the report. Sir, co-host बनाई उनको राजेश शर्मा है. Good afternoon, sir. Am I audible to all? Yes, you are audible. Gyan Ganga, state level online training program in computer science, organized by SRB Government College Bandipur in association with Commissionerate Department of College Education Rajasthan from 1st March to 6th March. During this 1 week initiative for teaching learning excellence in computer science, total 13 sessions were organized, in which knowledge sharing was done by professors, associate professors, and assistant professors of computer science
and other relevant fields. Out of all the eminent speakers, almost 60% resource persons were from different colleges and universities of Rajasthan, and 40% were from other parts of India. Theme of this short-term training program was emerging trends and innovations in computer science. Sessions were organized on different topics like futuristic aspects of cloud computing, introduction to security and cryptography, hands-on sessions with machine learning and deep learning, technology integration, a new paradigm shift in teaching and learning in higher education, research ethics, research methodology and publication process, GIS and location intelligence. I'm sure that the participants were able to get the most out of these sessions to enhance their own knowledge in these fields and will be able to impart this knowledge to their students as well. Here, I take the privilege to express my gratitude to Commissioner Sir, Shri Sandesh Nayak Ji, for his initiative in organizing this program. This program gave us a platform to enhance our subject-specific knowledge as well as our teaching skills. Our Government College Bandikui has also organized Gyan Ganga programs in Hindi and history as well. And this Gyan Ganga in computer science was a third Gyan Ganga program given to our college. I would also like to thank Additional Commissioner Sir, Shri B.L. Goyal Ji, State Coordinator of ISDC, Dr. Vinod Bhardwaj Ji, and the whole team of Gyan Ganga at Commissionerate for providing this opportunity to organize Gyan Ganga in computer science to our college, SRP Government College Bandikui. I'm extremely thankful to our Principal Madam, Srimati Sunita Vijayvargiya, for her cooperation. She extended all possible support throughout this program. I especially thank her for her belief in our team. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your brief report presentation. Now I request convener, Government College Tonk, to present the report. Now I request convener, Government College Tonk, to present the report. Yes, sir. Good afternoon to one and all to this grand valedictory being organized at the end of a great mission. Gyan Ganga, the river of knowledge, has flowed relentlessly over the past 4 months and is about to reach a temporary destination. We were fortunate enough to take a dip into this river as it passed by us lately, though. A Government College Talk finally hosted 2 FDPs, one in Urdu last week and the present one on initiatives for communication skills enhancement, which concluded just a few minutes ago. This program has inculcated that thirst for knowledge, which seems to have been lost under varied burden by our faculty members. Everyone has come out more satiated than ever. Our FDP had 75 participants enrolled, out of which 50 actually turned up. We had 16 sessions, including the inaugural and the valedictory. The resource persons offered insightful deliberations on every aspect of communication skills, crossing language barriers. While 5 of them were from Delhi and Punjab, 3 were retired but academically very active persons, 4 from other universities, and 4 from our own college education community. The participants were a dear lot, never failing in interaction, attendance offering, and submitting feedback. To sum up, it has turned out to be a memorable experience for all of us. Such programs will go a long way in shaping the way we teach, and learning will become a never-ending affair with us. Thank you, Commissioner Sir and Nodal Officer, Dr. Vinod Bharadwaj, for imposing trust in us, which we promise to keep up in near future academic endeavors. Thank you very much. Thank you, Dr. Asha ma'am, for your concise report. And now I request convener, Government Arts College, Alwar, to present the report. नमस्कार सर, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय कॉलेज शिक्षा आयुक्त श्री संदेश नायक जी, एडिशनल कमिश्नर सर बीएल गोयल सर, नोडल ऑफिसर विनोद भारद्वाज जी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर एवं बाबू शोभान राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के लोक प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में
फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्ञान गंगा के तहत दिनांक 1 मार्च से 6 मार्च तक आयोजित किया गया। इसका टॉपिक था इनिशिएटिव फॉर टीचिंग एंड लर्निंग एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं माननीय आयुक्त महोदय, एडिशनल कमिश्नर साहब BL गोयल सर, ISDSC के नोडल ऑफिसर विनोद भारद्वाज जी का मैं हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम की परिकल्पना की एवं उसे धरातल पर उतारा। संसार में नॉलेज डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज की तीव्र गति से हो रहा है कि हमें निरंतर अपडेट रहने के लिए, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, अपने एकेडमिक रोल के लिए वेल इक्विप्ड रहने के लिए इस प्रकार के शॉर्ट टर्म कोर्स एक नई रोशनी की किरण लेकर आए हैं। मैं आभारी हूं आयुक्त महोदय एवं टीम का, जिनकी उपयोगी एवं सार्थक प्रयास, यह बहुत उपयोगी एवं सार्थक प्रयास सिद्ध हुआ है। वस्तुतः कोरोना काल में उपजे वैक्यूम की जिस खूबी से उच्च शिक्षा विभाग की इस पहल ने नवाचार से पूरा किया है, वह सभी शिक्षक साथियों व शिक्षार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। शोध के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्याख्यानों व शोध की नवीनतम प्रवृत्तियों से जुड़ने का आधार ज्ञान गंगा से प्राप्त हुआ है, जो भविष्य के शिक्षण का आधार बनेगा। इस हेतु आप सभी का आभार एवं साधुवाद। सर, इस कार्यक्रम में संपूर्ण राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों से लगभग कुल 40 सहायक आचार्य में भाग लिया, प्रतिभागी के रूप भाग लिया। इस कार्यक्रम के लोक प्रशासन विभाग की तरफ से किया गया। इससे पहले भी हमने 2 ज्ञान गंगा प्रोग्राम अपने यहाँ कराए हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए लोक प्रशासनों के विद्वान एवं लोक प्रशासनों दोनों को इसमें आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय डॉक्टर समीर शर्मा जी, संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा किया गया। इसमें दूसरे प्रशासनिक अधिकारी अलवर कलेक्टर श्री नन्नूमल पहाड़िया जी को आमंत्रित किया गया। इसके साथ डॉक्टर मीनाक्षी हुजा, रिटायर्ड IAS, उन्होंने शिरकत की। 3 IAS अफसर जो लोक प्रशासन के व्यवहारिक पक्षों को हमारे सामने रखा। इसके साथ साथ हमने 6 डेलीगेट्स राजस्थान से बाहर से बुलाए। डॉक्टर पूजा पासवान, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, डॉक्टर राजकुमार सिवास, डीन देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, SN अम्बेडकर सोल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, प्रदीप सोहनी, इग्नू दिल्ली, इंद्रजीत सिंह सोडी, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट तमिलनाडु, रुमकी बासु, जामिया मिलिया इस्लामिया, नीलिमा देशमुख, नागपुर यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ 6 प्रतिभागी, 6 उद्घोषक हमारे यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से, जनक सिंह मीना जी जवाहर विश्वविद्यालय जोधपुर, रमेश अरोड़ा जी, रिटायर्ड प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, डेजी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, डॉक्टर अरूप शर्मा जी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सुमन मौर्य यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। इसके साथ साथ 2 विद्वान साथी हमारे कॉलेज एजुकेशन जुड़े हुए थे, बजरंग S राठौड़ जी और डॉक्टर कमल तिवारी जी। कार्यक्रम में प्रतिदिन रिफ्लेक्शन सेक्शन रखा गया, प्रतिभागियों द्वारा प्रश्नोत्तर किए गए। समापन सत्र में 2 विद्वान रुमकी बासु एवं रमेश अरोड़ा जी ने अपना उद्बोधन से प्रतिभागियों सभी लाभान्वित हुए। मैं आप सभी का इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बार बार हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. Now over to Dr. Vinod Bhardwaj for carry forward in this session. धन्यवाद सभी हमारे कन्वीनर्स एंड प्राचार्य, जिन्होंने 5 कार्यक्रम जो इसमें अभी आयोजित हो रहे थे। मैं सभी सहभागियों की सूचना जो हमारे इस कार्यक्रम को आज देख पा रहे हैं, आपके जो हमारे कमिश्नर साहब को, चूंकि एक मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग चल रही है और उनको उसके लिए उनको उस मीटिंग को ज्वाइन करना है एक बार। तो मैं इस कार्यक्रम में थोड़ा सा हम परिवर्तन करते हुए सबसे पहले आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे आयुक्त महोदय के उद्बोधन से हम लाभान्वित हों। उनके उद्बोधन हमारे लिए आशीर्वचन के रूप में है और इस कार्यक्रम के सूत्रधार भी वही हैं। राजस्थान की उच्च शिक्षा में इस प्रकार का क्रांतिकारी सुझाव, इस प्रकार का क्रांतिकारी कार्यक्रम उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं की योजना का देन है। हम आग्रह करते हैं हमारे आयुक्त महोदय श्री संदेश नायक जी से कि वे अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। श्रीमान आयुक्त
ने ये भी कहा है कि वो इस मीटिंग में जुड़े रहेंगे और इसलिए हमारा बाकी का कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन हम उनका उद्बोधन हम पहले सुनना चाहेंगे। आग्रह है श्री मान आयुक्त महोदय से कि वे अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। थैंक यू विनोद जी। आज ज्ञान गंगा प्रोग्राम का एक समापन कार्यक्रम होने जा रहा है और इस हफ्ते जो 5 ज्ञान गंगा कार्यक्रम जो सीकर, डूंगर, बीकानेर और बांदीकुई, टोंक और कला अलवर के माध्यम से हो रहा था, वो साथ ही साथ एक ग्रैंड वैलेडिक्टरी कार्यक्रम भी आप कोटा कॉलेज के जो इनके कोऑर्डिनेशन से करवा रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया है, एक ग्रैंड वैलेडिक्टरी हम कह सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम है इनफैक्ट काफी लोगों को बेनिफिट हुआ और पूरे राज्य में नहीं राष्ट्र में डिफरेंट कमिश्नरेट से इस कार्यक्रम के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि इस तरीके से इसका परिकल्पना हुई और कैसे एग्जीक्यूट हुआ। मैं आभारी हूँ सभी जो प्रिंसिपल्स हैं, ऑलमोस्ट 20 कॉलेजेस, 20 जिले के 32 कॉलेजेस इसमें जुड़े और मोर देन 76 प्रोग्राम्स करवाए गए। डिफरेंट वैरायटी, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में जहाँ मैं भी इसमें जुड़ा रहा था, तो वाइड वैरायटी, नॉट ओनली इंटरनल जो है हमारे जो कॉलेज एजुकेशंस के हैं, जो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं उनको भी जोड़ा गया, या इंटरनेशनल नेशनल लेवल के डिफरेंट जगह से मतलब हमारे प्रिंसिपल्स ने, हमारे जो कन्वीनर्स है, जो कोऑर्डिनेटर्स है, उन्होंने अपना जो लीडरशिप दिखाया है जो ज्ञान गंगा कार्यक्रम में, ये वन ऑफ द बेस्ट है। और शायद ऐसे कोई प्रोग्राम हो जो राज्य लेवल पे अभी हो रहा हो इस तरीके से, जो हमारे ज्ञान संवर्धन के लिए है या शोध कार्य को और इम्प्रूवमेंट और गति लाने में ये इस तरीके से लीडरशिप रोल निभाया हो, ये मैं ये नहीं कह सकता। बट कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही हर्ष की बात है। और हमारा नेक्स्ट गोल ये है कि जो कार्यक्रम हुआ है और जो पार्टिसिपेशंस हुए उसका एक डिटेल्स रिपोर्ट बनाएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी हम इसके बारे में अवगत कराएंगे और आपसे सबसे फीडबैक लेके अगर नेक्स्ट जब कार्यक्रम जब भी अभी क्योंकि इमीडिएटली कॉलेज ओपन अप हुए हैं, अभी हो सकता है जुलाई तक भी इसमें बिजी रहेंगे। तो मैं सभी जो आज जो 5 कॉलेज के कन्वीनर्स है, प्रिंसिपल्स है, उसके अलावा भी मैं काफी अन्य प्रिंसिपल्स को देख रहा हूँ, जैसे कि चुरू के भी हैं और डिफरेंट अदर प्राचार्य भी मुझे दिख रहे हैं, सीकर के भी दिख रहे हैं। आपने ये कार्यक्रम बहुत अच्छा तरीके से करवाया है और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मैं अपना धन्यवाद अर्पित करूंगा कि आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। आज के मुख्य अतिथि जो मैं अभी डॉक्टर अफरोज अहमद साहब है, सलाहकार है महाराष्ट्र सरकार के, उनको भी धन्यवाद करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में आपने इस रोल निभाया है और हम आभारी रहेंगे कि आपका जो भी डायरेक्शंस है या सजेशंस है, हम इस ज्ञान गंगा कार्यक्रम हो या हमारे कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के हो, उसमें हम इसको ऐड करते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू। मैं जुड़े रहूंगा क्योंकि प्रोग्राम में दूसरे एक मीटिंग में भी शामिल हुआ था, तो मैं आई विल बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। तो आप सभी को फिर से मैं थैंक यू बोलूंगा, धन्यवाद बोलूंगा। और ये जो प्रोग्राम है ये सबसे बढ़िया रहा, वेरी सेटिस्फाइंग इनिशिएटिव एंड स्पेशली थैंक्स टू द जो इनोवेशन सेल्स है स्टेट लेवल पे, उसको भी मेरा मैं उसके सामने बढ़ाई भी नहीं करना चाहता, बट उन्होंने जो जिस तरीके से इसको फॉलो अप किया, उसके बारे में आदेश निकाले और एक परिकल्पना करना या उसको एग्जीक्यूट करना भी एक अच्छी तरीके से हुआ। मैं उनको भी डॉक्टर विनोद भारद्वाज और उनके टीम को भी मैं
धन्यवाद अर्पित करूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर आपके अप्रिशिएटिंग वर्ड्स और ब्लेसिंग्स के लिए सर। ये कार्यक्रम आपके बिना संभव नहीं था और श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त महोदय ने भी इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने में और इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए बहुत सकारात्मक प्रयास किए। सर आपकी सोच और कॉलेज शिक्षा में गुणवत्ता की स्थापना के लिए आपके जो प्रयास हैं, विभिन्न प्रयास जिसमें ज्ञान सुधा भी शामिल है, और ऐसे अनेक प्रयास जहाँ आपने ई कंटेंट्स की बात की है सर। आज इंडिया लेवल पर ई कंटेंट्स की जब चर्चा हो रही थी तो मुझे लगा राजस्थान में जितने कंटेंट्स बने हैं उतने उन स्टेट्स के पास नहीं थे। एंड आई एक्नॉलेज कि राजस्थान में 2.5 लाख से ऊपर हम वीडियो कंटेंट्स के लिए पहुंच गए हैं राजीव गांधी कंटेंट बैंक पर। सर आपके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संभव हो पाया है, इसलिए सर इसका सारा श्रेय हमें लगता है कि नेतृत्व के रूप में सर आपको जाता है। सर आज के इस कार्यक्रम में मैं आपकी सर अभी तक ये चर्चा नहीं की थी, लेकिन मैं सभी सहभागियों को भी ये सूचित करना चाहता हूँ कि 3 जिला महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय कोटा से, क्योंकि 5 महाविद्यालय जुड़े थे, और बीकानेर के हमारे 2 महाविद्यालय और चूरू महाविद्यालय, ये तीनों जिला सर आपको ज्ञान गंगा के कार्यक्रम के लिए एक तरह से सम्मानित करना चाहते हैं सर। इसलिए आपकी उपस्थिति हम चाहेंगे कि आप जिस तरह आप इसमें कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे ताकि वो प्राचार्यगण भी अपनी बात कहेंगे और ये वो सम्मान पत्र आपको भेंट करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से एक नई परंपरा इस माध्यम से हमारे महाविद्यालय शिक्षा में आरंभ होने जा रही है सर। अभी तक केवल आयुक्तालय ही कॉलेजेस को एक्नॉलेज करता था कि किस कॉलेज ने अच्छा काम किया है, वो एक्नॉलेजमेंट होता था। कॉलेजेस भी आयुक्तालय के काम को एक्नॉलेज करें, कार्यक्रमों की सराहना करें, ये संभवतः इस शिक्षा उच्च शिक्षा में पहली बार हो रहा है। और सर इसकी शुरुआत आपके इस ज्ञान गंगा कार्यक्रम से होने जा रही है। मैं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में ज्ञान गंगा की उपलब्धियां बताने के लिए इस कार्यक्रम की सह प्रभारी आयुक्तालय नवाचार प्रकोष्ठ से डॉक्टर ललिता यादव को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे ज्ञान गंगा की उपलब्धियों के बारे में अपनी बात को संक्षिप्त कहें। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अफरोज अहमद साहब, सलाहकार राजस्व एवं वन मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान संदेश नायक जी, IAS आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान। कार्यक्रम में उपस्थित श्री BL गोयल जी, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान। विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य, ज्ञान गंगा कार्यक्रम के राजस्व समन्वयक डॉक्टर विनोद कुमार भारद्वाज, कार्यक्रम के आयोजन समन्वयक, आयोजन सचिव व समस्त सहभागीगण, इन कार्यक्रमों से जुड़े हमारे अन्य साथी सदस्य, आप सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम। हमें खुशी है कि फाइनली हम इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं। मुझे बताते हुए बहुत ही गौरव, हर्ष, खुशी हो रही है कि हम सभी ने सामूहिक सहयोग से 20 जिलों के 32 राजकीय महाविद्यालयों में 29 विषयों में कुल 76 प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। आप सभी से मैं यह बात साझा करना चाहूंगी कि पायलट फेज व मिडिल फेज को सम्मिलित करते हुए कुल 9 चरणों में हमने संकायवार विषय आवंटित कर पूर्व निर्देशित समय 6 मार्च तक ज्ञान गंगा कार्यक्रम को पूरा किया है। पायलट फेज की सफलता के बाद श्रीमान आयुक्त महोदय ने इसे वृहद स्तर पर क्रियान्वित करने की बात कही और परिणाम आज आपके सामने है। आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश व मार्गदर्शन में ज्ञान गंगा कार्यक्रम ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ है, एक मुकाम हासिल किया है। इस कार्यक्रम में अहम भूमिका श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त महोदय की भी रही। उनका सकारात्मक सहयोग एवं मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहा। ज्ञान गंगा प्रशिक्षण कार्यक्रम से लगभग हमारे 2700 शिक्षक साथी लाभान्वित हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में सहभागिता एक अद्भुत उदाहरण है। ज्ञान गंगा कार्यक्रम की यह सफलता आप सभी के बिना अधूरी है। आप सभी ने जिस लगन, मेहनत, शिद्दत, सक्रियता से ज्ञान गंगा कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसने ज्ञान गंगा कार्यक्रम को शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर बनाया है। आयुक्तालय स्तर पर नवाचार एवं कौशल प्रकोष्ठ ने सिर्फ मॉनिटरिंग का काम किया है। ज्ञान गंगा प्रशिक्षण की क्रियान्विति वास्तविक रूप में आयोजक महाविद्यालयों द्वारा की गई है। अंत में मैं हमारे सभी सहभागियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी। उन्होंने जिस सक्रियता और उत्साह से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर इन कार्यक्रमों को सफल बनाया है, वह हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है।
और हमारे साथी सदस्यों ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण व लाभदायक सुझाव भी प्रेषित किए हैं। इन सुझावों के साथ हम ज्ञान गंगा कार्यक्रम को नए रूप में नए आइडियाज के साथ फिर लेकर आएंगे और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निसंदेह हमारे लिए, आपके लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद ललिता जी, आपके इस जानकारीपूर्ण उद्बोधन के लिए कि ज्ञान गंगा में क्या हुआ। मैं ये विश्वास के साथ कि जब हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की इस कार्यक्रम में, तो मित्रों मैं बताना चाहूंगा आप सभी की सूचनार्थ कि जहां हमारे पास बड़े राजकीय महाविद्यालय, हम बार बार नाम लेंगे डूंगर महाविद्यालय बीकानेर का, जिसने सर्वाधिक कार्यक्रम 10 कार्यक्रम आयोजित करवाए ज्ञान गंगा के आउट ऑफ 76। और उसके बाद हमारे साथ दूसरे महाविद्यालयों में राजकीय महाविद्यालय अजमेर, राजकीय महाविद्यालय कोटा, विज्ञान कोटा, आर्ट्स गर्ल्स कोटा, और इस दूसरी तरफ हमारे पास मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, गवर्नमेंट कॉलेज चूरू, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गंगानगर, ऐसे महाविद्यालयों की श्रेणी थी। राजर्षि महाविद्यालय अलवर, तो VSR अलवर, ऐसे महाविद्यालयों की श्रेणी थी जिनके पास सक्षम संसाधन है। तो दूसरी तरफ हमारे साथ ऐसे महाविद्यालय भी बैठे हुए थे जिनमें से गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, वो एक SDO हेडक्वार्टर का कॉलेज है, लेकिन बिलिंगनेस के साथ उसने उन कार्यक्रमों को आयोजित किया। गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा और गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई में जो आयोजक थे इन कार्यक्रमों की, मित्रों वो 2018 बैच के हमारे साथी हैं, और 2018 बैच के साथी होने के बावजूद उन्होंने इस चैलेंज को लिया और उन कार्यक्रमों को बखूबी आयोजित करवाया जो प्रशंसा के पात्र हैं। हमारे साथ ऐसे कॉलेज भी थे जहाँ केवल एक ही व्यक्ति उस सब्जेक्ट में पोस्टेड है और उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया। गवर्नमेंट कॉलेज झालावाड़, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, जिसमें ये भी आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम हो रहा था। गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा, चेतना जी वहाँ पर 2018 बैच से और अकेली हैं EFM में। गवर्नमेंट कॉलेज ये बांदीकुई, जहाँ कंप्यूटर साइंस में अकेली ये हैं और इन्होंने अभी ये कार्यक्रम आयोजित करवाया। अकेले होने के बावजूद भी कभी ये इस बात का ये नहीं रहा कि भाई हम अकेले हैं तो हम कैसे कार्यक्रम करा पाएंगे। दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे महाविद्यालय भी आए जहाँ संख्या बल भले ही रहा हो, लेकिन कार्यक्रम नहीं कराने के पीछे कुछ न कुछ उनके पास तर्क रहे। एनीवे, ये कार्यक्रम अंतिम पड़ाव में है और सफलता के उन आयाम को छू चुका है जहां पर कि राज्य भर से हमारे पास बहुत सारे फीडबैक्स और फोन कॉल्स हमारे पास इसकी सकारात्मकता, इसकी उपादेयता के लिए आए। मैं इस समय हमारे पास चूंकि हमारे पास 32 महाविद्यालयों के प्राचार्य आयोजक महाविद्यालय रहे हैं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा केवल 4 महाविद्यालय के प्राचार्यों से कि वे अपने प्राचार्य मत से, क्या जी संस्था प्रधान के नाते उन्हें कार्यक्रम के बारे में क्या लगा, उन्होंने कार्यक्रम के बारे में क्या किया, क्या सोच रखते हैं। मैं सबसे पहले आग्रह कर रहा हूं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय कोटा, कोटा मेरी आवाज सुन पा रहे हैं विजयवर्गीय साहब? Honorable Commissioner Sir, Shri Sandesh Nayak, IAS, Additional Commissioner Shri BL Goyal Sahab, RAS, Chief Guest of the function Dr. Afroz Ahmed, Advisor, Government of Maharashtra, respected principals, Head of Innovation Cell, CCE, Dr. Vinod Bhardwaj, Dr. Lalita Yadav, and their team members, resource persons, participants, and Government Arts College seeker. At the very outset, from Heritage Building of Government College Kota, I welcome you all on behalf of all the principals from Kota region. Sir, looking at the COVID situation, we ourselves at college level decided to plan national and international seminars on online platform in the month of November 2020. And the task was initiated
and accomplished successfully by the Department of Botany, Government College Kota. 1400 participants actively participated in the webinars. We have been doing well to communicate our syllabi and lectures to students via e-lectures, PDF files, etc. The e-lecture number of our college has been appreciable, and it is around 3586 in number. Entire faculty contributed to their best, and we are at the top of the Rajiv Gandhi e-content bank. The only thing which was missing in the COVID period was that was felt by our faculty members. They were unable to attend our outstation seminars, interact with subject experts, and how to enhance their academic and research skills. This was the problem with all the faculty members, not only of the Government College Kota, but entire Kota region. The answer of such academic research thrust was given by Commissionerate in the form of Gyan Ganga. In Gyan Ganga, colleges of Rajasthan were put together and knowledge shared. Planning to select resource person, feedback